Okay, hello everyone. I hope all of you are doing great and keeping safe wherever you guys are. Now, this is an introductory video of how we are going to approach entire advanced auditing and professional ethics as a subject for you guys. Now, all of you would have studied auditing standards, at least the basic ones at the intermediate level. So let me tell you, the syllabus of final, when you actually look at the broader syllabus, you'll find that majority chapters like auditing standards, company audit, the Caro chapter, audit report chapter, you'll find that the basic was covered at the intermediate level. The same component plus some advanced aspects are covered at a final level. Now, if I show you the entire list of chapters, you might get scared, but let me give you a brief overview. See, we have auditing standards, again, all from 200 till 700 applicable. Yes, even at a final level, 800 series is not applicable for your syllabus. I don't know what happened that ICAI 1.5 year back came up with an exclusion list. They've removed 800 series from your syllabus. In real life, it does exist. They've removed other standards also like SAEs, SRS, SREs. That is not part of your syllabus anymore. So auditing standards 200 to 700. Other than auditing standards, you have 15 chapters. Out of those 15, company audit, professional ethics and Caro are three again important chapters. And other than these three, we are left with 12 miscellaneous chapters. So what all is there in the miscellaneous chapters? You will have bank audit, you will have insurance audit, you will have what is due diligence, investigation and forensic audit, you will have audit of NBFCs. So dream of a different type of entity. Majority of those entities from auditing point of view are covered in your syllabus. Like, this is also one complaint I have with ICI, that these miscellaneous chapters are so much in detail and so much theoretical in nature that in real life the practical aspect is somehow missing in these chapters. And unfortunately, the problem is the weightage of these chapters. So let me give you an overview. So I've done a basic analysis on May 19 paper, November 19 and November 2020, and this in front of you is the uh, a simple segregation of how many marks based questions have been asked from respective chapters. So if you see carefully, auditing standards, and there are two separate chapters also which are on auditing standards only, these are also essay based chapters. Can you see risk assessment and internal control? This covers your essay 315. Then audit planning, strategy and execution. This covers your essay 300, 320 and 330. So basically your planning stage entirely is covered in these two chapters. Now, if I assume that these chapters are also part of your essays, you see carefully 18 plus 5. In November 19 paper, 23 marks straightforward questions came from essays. Here 23 plus 5, 28 marks came from essays directly. Now the most surprising part is in November 2020 attempt, on essays we had 38 marks worth of question, मतलब 38 marks का questions सिर्फ essays के ऊपर से आया था. And remember, ये मैं बात कर रहा हूँ out of 70 mark paper, because MCQ is not really disclosed to all of us, so we really don't know कि MCQ का bifurcation क्या था, वहां पर कितना standard से question आया, कितना professional ethics से question आया. ये सिर्फ 70 marks में से बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पर 23, 28 and you will see sometimes जो weightage है standards का significantly बढ़ जाता है, almost 38 marks. Then can you see company audit 5 mark, 15, 13. तो थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता रहता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखते हो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड योर ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो, मतलब मैं ऑडिट रिपोर्ट और कारो को एक ही चैप्टर में कवर करता हूं, ये चारों चैप्टर्स मिलकर के अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ योर सिलेबस कवर करते हैं फ्रॉम लास्ट मे 19, नवंबर 19, जब भी रिवाइज सिलेबस है तब से. अगर आप सारे पेपर का पैटर्न देखोगे, एंड इवन जो आईसीआई ने सेक्शन वाइज वेटेज दिया है, चैप्टर वाइज वेटेज दिया है, उसके अंदर भी क्लियरली ऐसा हाईलाइट किया दैट सिर्फ ये चार चैप्टर मिलकर के 60% सिलेबस कवर करते हैं. एंड जो बचा हुआ मिसलीनियस चैप्टर्स है, यू हैव 12 चैप्टर्स देयर, वो मैक्सिमम 40% मार्क्स कवर करने वाले हैं. रादर आई टेल यू व्हाट, उन 12 चैप्टर्स में से ऐसा होता है बेटा, एक दो चैप्टर्स में से तो कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है, मतलब मे बी उस अटेम्प्ट के अंदर एक दो चैप्टर्स तो कंप्लीटली स्किप कर दिए हैं, या मे बी एक या दो मार्क के लिए एमसीक्यू पूछ लिया होगा, बिकॉज मैक्सिमम इंडिविजुअली चैप्टर वाइज वेटेज ना 4 मार्क्स के ऊपर है ही नहीं. यू विल जस्ट सी वन क्वेश्चन मे बी फ्रॉम बैंक ऑडिट और इंश्योरेंस, या मे बी बैंक इंश्योरेंस पे नहीं आया तो एनबीएफसी पे आ जाएगा. तो ये कंपल्सरी भी नहीं है कि यहां पर सारे मिसलीनियस चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने वाला है. Why am I discussing all this?
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन एट अ फाइनल लेवल यू हैव 8 सब्जेक्ट्स टू स्टडी, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम रहने वाला है। आई वांट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि तुमको इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तुमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, तुम्हारे पास आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रहेगा, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग, ओके मुझे कहां ज्यादा टाइम डिवोट करना है, बिकॉज अगर तुम पूरा लिस्ट ऑफ चैप्टर्स देखोगे, वी हैव इन टोटल 4 मॉड्यूल्स, मतलब अगर मैंने पूरा आईसीआई मॉड्यूल को बेस रखा है, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का मैंने पूरा समराइज किया है फ्रॉम 200 टू 700, ऑल योर स्टैंडर्ड्स जैसा आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था उसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, थोड़ा और डिटेल में, एंड मोर कंटेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एट अ फाइनल लेवल। All your standards are there in the first module. Then you have module 2, module 3, module 4. मैंने important chapters का बाइफरकेशन किया, मतलब मुझे लगता है प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कारो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको मॉड्यूल 2 में एलोकेट कर दिया है। अगर आप मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स देखोगे ज्यादा प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स आएंगे, तो मतलब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 अगर आपने कवर किया ना, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सिलेबस विल बी ओवर। देन यू हैव मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए, जो मिसलेनियस चैप्टर्स से बचे हुए, इनका वेटेज एक 30% के आसपास रहने वाला है। तो इस तरीके से मैंने चारों मॉड्यूल को बाइफरकेट किया है। आई हैव केप्ट आईसीआई मॉड्यूल्स एज अ बेस, तो अगर आप आईसीआई मॉड्यूल रेफर करो या ये रेफर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा समराइज वर्जन रहेगा, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज एट अ फाइनल लेवल ये मिसलेनियस चैप्टर्स का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बोलता हूं। ये जो 40% सिलेबस है ना, यहां पर आईसीआई अभी भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, मतलब डायरेक्टली जो हेडिंग है ना वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और जो सेम 4 पॉइंट लिखे हैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप वो ही लिख करके आओगे। बट थिंक अबाउट दिस, लिटरली देयर आर मोर देन, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 600 पेजेस, जिसमें से 35 मार्क का पेपर आने वाला है ऑन एन एक्सट्रीमली हायर साइड, और वहां पर भी ना लाइक लिटरली 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेट्स से मे बी 4 और 5 क्वेश्चन ऑन अ हायर साइड, तो आपको 600 पेजेस में से वो गिने चुने 4-5 पेज ढूंढने हैं जिसपे एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एंड कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम दे आस्क अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट ओवरऑल चैप्टर के अंदर से कंटेंट रहता है, कुछ भी बाहर का नहीं पूछते, कुछ भी अलग से नहीं पूछते। हाँ, थोड़ा आर्टिकलशिप का अच्छा एक्सपीरियंस है, टैक्स ऑडिट पे क्वेश्चन आया, आप खुद से आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, पर जो बाकी सारे मिसलेनियस चैप्टर्स है वहां पर आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ मिसलेनियस चैप्टर्स। तो मैं क्या रेकमेंड करूंगा आपको, इफ यू रियली आस्क मी, लेट्स कम बैक टू आवर इंट्रोडक्शन पीपीटी। ये जो चारों चैप्टर्स है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट, इट अगेन कवर्स योर 138 टू 148, थोड़े एडिशनल सेक्शंस भी दिए हैं इन्होंने, बट 138 टू 148 मेजर कंपोनेंट है। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आपको कोड ऑफ एथिक्स का एक ओवरव्यू दिया है, फर्स्ट शेड्यूल के क्लॉजेस दिए हैं, सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेस दिए हैं, एंड देन ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो, दैट मींस 700 से लेके 720 वाले स्टैंडर्ड्स एंड कारो 2020। सो ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए मैंने, ये रिकॉर्ड जो मैं करने वाला हूं, ये नवंबर 21 से लेकर के मई 22 नवंबर 22 तक आराम से रेलेवेंट रहेंगे, बिकॉज जो भी अपडेटेड आईसीआई मटेरियल है उसके हिसाब से पूरे लेक्चर्स रहने वाले हैं। सो यहाँ कारो 2020 को डिस्कस करेंगे, होपफुली by the time you are going to write November 2021 एग्जाम, तब से नवंबर 20 कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा 100%। सो उस तरीके से अगर आप ये 4 चैप्टर भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हो, समझ लेते हो, एंड वी गोना स्पेंड अप्रोक्सीमेटली मोर देन 75 to 80 hours only on these chapters only, and then again additional 50-60 hours on the remaining miscellaneous 10-12 chapters. What I'm trying to say is, ये चारों चैप्टर्स में आप इतना अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, ट्राई टू रीड एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ताकि ये चारों चैप्टर्स जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग 1 or 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन, यहां चारों पर आपको सबसे कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, ये जो मिसलेनियस चैप्टर्स है वहां पर आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा लास्ट 2 दिन के अंदर बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां पर चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है यार, कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है टू रिमेंबर ऑल 600 पेजेस। तो आपको उसमें से हर चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, उनको साइड में मार्क करके रखना पड़ेगा, एंड लास्ट डे ज्यादा टाइम इन मिसलेनियस चैप्टर्स पे इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आप लास्ट डे में सब कुछ याद नहीं कर सकते हो, आपका जो अंडरस्टैंडिंग अभी से इवॉल्व होगा, अभी से जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा वो आपके साथ में रहने वाला है। तो ये चारों चैप्टर्स को, चैप्टर 1, 2, 3, 4, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो, इनको इतना अच्छे से करना है ड्यूरिंग द लेक्चर एंड मे बी ड्यूरिंग योर नॉर्मल रिविजन टाइम, पूरा अच्छे से, ताकि आपको ये चारों में बिल्कुल ट्रबल ना हो 1 or 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड यू कैन डिवोट मोर टाइम ऑन द मिसलेनियस चैप्टर्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मिसलेनियस चैप्टर्स अभी नहीं पढ़ना है, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेक्चर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहीं कहीं पे जहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकता हूं, वो जैसे डीडी रिपोर्ट दिखा सकता हूं आपको मैं, वो सब भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, मे बी आपको शायद आपको फ्यूचर के अंदर क्या काम करना है वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेगा, पर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूंगा आपने इसको समझ लेना चाहिए,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके साइड में रखना चाहिए एंड लास्ट 1-2 दिन 1 और 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन ज्यादा टाइम मिसलेनियस चैप्टर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसको आप रिटेन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो हमारा अप्रोच कैसे रहेगा, हम सबसे पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से शुरुआत करेंगे एंड आपको मालूम है मैं नॉर्मली 700 सीरीज से शुरुआत करता हूं। तो जो पहला लेक्चर है वहां पे इंट्रोडक्शन रहेगा, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्वड इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड देन विल स्टार्ट विद द 700 सीरीज। Once auditing standards are done, we're going to go to company audit chapter. डिटेल में 138 to 148 डिस्कस करेंगे, 177 जो ऑडिट कमेटी वाला पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, जो भी रेलेवेंट सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम बहुत एक्सट्रीम डिटेल में कोड ऑफ एथिक्स का ओवरव्यू आपको देंगे। उसके बाद में व्हाट इज फर्स्ट शेड्यूल, व्हाट इज सेकंड शेड्यूल एंड प्रोफेशनल एथिक्स डिस्कस करते वक्त काफी सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। यहां ना अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है, यहां पे क्वेश्चंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके सही आंसर कौन से क्लॉज से आएगा वो ढूंढने में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। दैट इज what we are going to work around during the lectures, and then I'll give you a good exposure of what Caro 2016 was, how it is different from Caro 2020, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर और क्लॉजेस ऐड कर दिए गए हैं, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है रिगार्डिंग कारो क्लॉजेस, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था बेटा कि नॉर्मली हमारे पूरे लेक्चर्स किस तरीके से प्रोग्रेस करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है टोटल 120 से लेके 130 आवर्स का ओवरऑल सारा मिला के लेक्चर्स रहने वाला है। उसमें से 80 आवर्स तो 100% पहले 4 चैप्टर पे ही रहेगा एंड देन रिमेनिंग 40-50 आवर्स विल बी ओनली ऑन मिसलेनियस चैप्टर्स। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आंसर का मॉड्यूल मिल जाएगा, दैट विल बी मॉड्यूल नंबर 5, जहां पर मेरे हिसाब से जितने भी आज तक पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं उनको अक्यूमुलेट किया है मैंने, एंड इवन जो चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्यूचर में, उनको भी क्रिएट करके आपके Q&A मॉड्यूल में इंक्लूड किया है। सो इट्स नॉट जस्ट द कंपाइलेशन, इट्स ऑल्सो फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट एडिशनल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लेक्चर्स प्रोग्रेस करेगा। एंड आई एम नॉट रिकॉर्डिंग 3 आवर का वन लेक्चर, सीधी इट्स अ स्टूडियो रिकॉर्डिंग, डू यू गेट माय पॉइंट। तो 3 घंटे के लिए कंटिन्यूअसली बात करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहेगा एंड वी सिटिंग एट होम, वी ऑल आर एट होम, तो आपको मालूम है इट्स नॉट दैट सिंपल कंपेरेटिवली, बट हाँ इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट 1.5 आवर्स to 2 आवर्स का रिकॉर्डिंग, बट एक कॉन्सेप्ट पे खत्म नहीं होगा, लेक्चर को बीच में ब्रेक नहीं किया जाएगा। तो आपके लिए छोटे छोटे 1.5 और 2 आवर्स के लेक्चर्स रहने वाले हैं, आप कभी भी बैठ के कहीं भी बैठ के खत्म कर सकते हो। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड अगर आपका लेट्स से नवंबर 21 एग्जाम है, मई 22 एग्जाम है, नवंबर 22 है, या मे बी इवन आफ्टर दैट, जो भी रेलेवेंट अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स रहेंगे उनका एक सेपरेट अमेंडमेंट शीट बना दूंगा एंड चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपके रेलेवेंट अमेंडमेंट्स रहेंगे फॉर रेलेवेंट अटेम्प्ट वो आपको एग्जाम के 1 महीने पहले मिल जाएंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट नवंबर 21 तक इस मटेरियल में कुछ ज्यादा चेंजेस आने चाहिए। मई 22 नवंबर 22 अगर थोड़ा सा कंपनीज एक्ट रिलेटेड चैप्टर्स में डिफरेंस अमेंडमेंट अगर आता है तो उसको सेपरेटली अमेंडमेंट लेक्चर्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। So I think this is a great overview to you all. I hope all of you will be able to enjoy these lectures. That's the main expectation. If you have any other doubts and all, you can reach out to me on WhatsApp or Telegram channel. Thank you guys. Rishabh for you. Bye bye.